Hello students, welcome to my YouTube channel and Latin Path. I'm your host Meghraj and today we will study 7 scientific techniques of F.W. Taylor. In previous video we have discussed about who was F.W. Taylor and his 4 scientific principles. So I'll give you the link in the I button and you can go there and watch that video first and then come to this video. So let's start the video. So first technique that Taylor gave was functional foremanship. Now in this Taylor said that there should be 2 departments in any factory. One department is planning department and the other department is production department. He said that planning department should not be engaged in the work of production and production department should not engage themselves in work of planning. तो यहाँ पर प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर भी बहुत सारे अदर फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग टाइम को रिलेटेड प्लानिंग करना और प्रोडक्शन कैसे होगा उसको रिलेटेड प्लानिंग करना, यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी कई सारे अदर डिपार्टमेंट या फंक्शंस मैं बोलूँ। तो हर एक फंक्शन के लिए, हर एक अलग अलग फंक्शन के लिए टेलर ने बोला कि एक एक्सपर्ट होना चाहिए जो उसको पूरा सुपरवाइज करे। तो यहाँ पर सेम चीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी कई सारे और काम होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग हेड होना चाहिए जो उस काम वो जो सिर्फ उसी काम को करे जो काम उसे दिया जाए, ताकि बार बार कोई काम करने पे वो पर्सन जो है वो एम्प्लॉय क्या हो जाए, स्पेशलाइज्ड हो जाए, क्योंकि एक ही काम बार बार करोगे तो आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर फंक्शनल फोरमैनशिप में यही बात करी। तो इसे पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट है टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर। तो हर एक फंक्शन में एक फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए जो सुपरवाइज गाइड सब करेगा। एज वन सुपरवाइजर कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क, क्योंकि मैंने आपको बताया प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग प्लानिंग के काम होंगे, तो एक पर्सन हर तरीके का प्लान नहीं बना सकता। तो यही लिखा है एज वन सुपरवाइजर कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क, सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट। टेलर ने खुद से सजेस्ट किए 8 स्पेशलिस्ट और वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, और फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर टू वर्कर्स। द लास्ट पॉइंट इज each boss is specialized in one aspect of work, and while observing and instructing the worker there will be definitely specialization। मैंने आपको बताया कि एक बॉस एक ही काम को देखेगा तो वो बार बार करने पे उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा और वो स्पेशलाइज्ड हो पाएगा। तो यही है फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक। So now on your screen you will be looking at one figure in which factory manager is divided into 2 parts, planning in charge and production. So planning in charge is also further divided into 4 functional experts. First is instruction card clerk. So instruction card clerk is responsible for giving general instruction necessary to carry on the job. Second is route clerk. Route clerk is responsible to fix the sequence of steps for performing mechanical or manual job. Third is time and cost clerk. This is responsible to fix up the time for starting and completion of job. And the fourth functional expert is disciplinarian. This is responsible for performance of job in orderly and systematic way. So next is production in charge. In production in charge also there are 4 functional experts. So first is speed boss. Speed boss assumes timely consumption of job. Second is gang boss. He arranges all the machine, tools and other resources required for performance of the job. Third is repair boss. Repair boss ensure that machine and tools are kept in working condition. And the last is inspector. He check on quality control of the output. तो यहाँ पर प्लानिंग वालों का काम प्लानिंग से रिलेटेड था एंड प्रोडक्शन वालों का प्रोडक्शन से, तो उसे फर्दर भी डिवाइड करके भी एक। नाउ सेकंड टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क।
Now, what does here word standardization mean? Standardization means good quality of product and benchmark. Let me give you an example. Let's say there's a company which produces a soap, and that company produces only one type of soap, let's say neem soap. Now, every soap that is produced by this company should have the same size, same color, same weight, everything should be same. And also this product, that means this soap should be of good quality. So this is called the standardization. Now Taylor says that standardization can be maintained in the company only when you are having the good staff, when you are having the good machines and infrastructure is good, everything should be perfect. और इसीलिए ये पॉसिबल हो पाएगा अगर आपका सब कुछ पीछे से सब कुछ अच्छा है, स्टाफ अच्छा है एंड मशीन्स अच्छी हैं, सब परफेक्ट है, तभी जाके आपके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा हो पाएगा, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन आ पाएगा. Now, what does here what simplification mean? Simplification means eliminated unnecessary diversity of product. What does it mean? सिंपल अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आपके 12th में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई कोई 6 भी लेते हैं बट अभी मैं 5 लेके चल रहा हूं. तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. अब पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से मान लीजिए सीबीएसई से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं पूरे साल में, आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपको मार्च में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के पेपर देने होंगे. तो आप खुश हो जाओगे. और आप जहां पहले 5 सब्जेक्ट्स में अपना टाइम देते थे, आपको सिर्फ अब अपना पूरा टाइम कितने सब्जेक्ट्स में देना है? सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में. लेट्स आपने अकाउंट्स और बिजनेस चूज कर लिया. अब आप अगर आप 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देते तो आपकी परसेंटेज मान लेते हैं 80% आती. लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट के पेपर दोगे, सिर्फ पूरे साल भर 2 ही सब्जेक्ट पढ़े आपने, और उसका रिजल्ट जो होगा उसमें शायद आपके 90 प्लस परसेंटेज आ जाए. ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि वहां पहले आपको 5 सब्जेक्ट में अपना टाइम देना पड़ता था, बट अभी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में आपको अपना टाइम देना है. तो इसीलिए यही टेक्निक कंपनी भी अपनाती हैं. किसी किसी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट को कम करके कुछ ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं. इससे क्या होता है, उनका जो मशीन, रिसोर्सेज, स्टाफ वगैरह, वो सब कुछ ही प्रोडक्ट बनाने में पूरी मेहनत करते हैं और वो प्रोडक्ट फिर उनका ज्यादा अच्छा बन पाता है. अगर मैं इसका एक रियल एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर इसका रियल एग्जांपल है एप्पल कंपनी. एप्पल कंपनी का नाम आप 12th में हो, सभी ने सुना होगा, शायद कईयों का एक ड्रीम होगा कि हाँ उनके पास आईफोन हो. तो ये कंपनी एक टाइम में बैंक करप्ट हो गई थी, बहुत बुरी हालत थी इस कंपनी की. देन इस कंपनी में एक सिंप्लीफिकेशन रूल लाया गया. सिंप्लीफिकेशन, जब स्टीव जॉब आए तो स्टीव जॉब सीईओ बने, उनने सिंप्लीफिकेशन किया. सिंप्लीफिकेशन यानी कि उस समय उस कंपनी के 250 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते थे, लेकिन स्टीव जॉब ने सिर्फ 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला. और तब का दिन और आज का दिन है, एप्पल कंपनी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है. नाउ लेट्स हैव अ क्विक रीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. Standardization of output is possible if standard is maintained right from the selection of tools, equipment, and machine to use. Maximize the output by keeping in mind the quality standards. Standardization does not mean only quality standard, but it refers to setting up standards for size, type, weights, measure, and quality of product. Simplification emphasizes on elimination of unnecessary diversity of product, size, and types. Simplifying the task, there can be economy in use of machine, labor, inventory, maintenance, etc. It will also help in improving the quality and reduction of कॉस्ट. तो मैंने वही चीज बताई थी कि सिंप्लीफाई करने से आपका जो मशीन, लेबर, इन्वेंट्री, ये सब चीजें हैं वो पहले बहुत सारे कामों में यूज हो रही थी, अब कुछ काम में यूज होगी, कुछ प्रोडक्ट में यूज होगी, तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बन पाएगा. तो थर्ड टेक्निक इज मेथड स्टडी. Method study means in general life also, if you are getting some work, you may have noticed that there are some work which can be done by lot of methods. So you have to select one method which is the best for you and which is more beneficial for you. So you select that method. तो इसी तरीके से
जो कंपनीज होती हैं वहां भी कोई भी काम करने के लिए, कोई प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो कंपनी को उनमें से बेस्ट मेथड सेलेक्ट करना पड़ता है, और ये मेथड मैनेजमेंट रूल ऑफ थंब लगा के नहीं सेलेक्ट करेगा, यानी कि उनकी मर्जी करा ये मेथड होना चाहिए, तो ऐसे नहीं। उन्हें प्रॉपर एक मेथड स्टडी करनी पड़ेगी। तो मेथड स्टडी में टेलर ने बोला है कि यहाँ पर कोई भी मेथड है, सारे मेथड को हमें ट्राई करके देखना चाहिए, या उनके प्रोज एंड कॉन्स लिख लेने चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि जो मेथड हमें ज्यादा बेनिफिट दे रहा है विथ मिनिमम कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट भी कम आए और बेनिफिट भी ज्यादा दे रहा हो, वो मेथड हमें सेलेक्ट कर लेना चाहिए, और उसी मेथड से कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होना चाहिए। तो प्रॉपर एक मेथड स्टडी यहाँ पर बनाई गई है। तो इसको रीड करते हैं। पहला है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, जो बेस्ट वे होगा, which keeps production cost minimum, खर्चा कम होना चाहिए, and makes maximum use of the resources of the organization, यानी कि optimum utilization of resources. Taylor suggested that method of production should not be decided by rule of thumb, but all the method must be tried in the organization. हर एक मेथड को ट्राई करना चाहिए, बिकॉज बिना ट्राई करे भी आपको एग्जैक्ट चीज पोजीशन नहीं पता चल पाएगी। And one which brings maximum benefit with minimum cost must be selected. तो जो ज्यादा बेनिफिट दे रहा है और कम खर्चे में, वो मेथड सेलेक्ट हो जाना चाहिए। To determine the best way, there are certain parameters right from procurement of raw material till the final product is produced. तो यहाँ पर जो बेस्ट मेथड है वो हम शुरू से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जब से रॉ मटेरियल कंपनी में आया और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। और यहाँ पर मेथड स्टडी में एक पॉइंट जो अब मैं बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये ऐसा है कि ये जो टेलर है ये इसकी एक अचीवमेंट है। तो किसी की भी अचीवमेंट हो, उसे हमें जरूर लिखना चाहिए, जरूर कोट करके आना चाहिए। तो टेलर डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। तो ये जो असेंबली लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, और आज की तारीख में हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसे यूज करती है। इनिशियली ये व्हीकल्स वाली कंपनियों ने यूज किया था। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कोई एक कार बनाने वाली कंपनी है, तो उसकी फैक्ट्री में एक असेंबली लाइन होगी। असेंबली लाइन मान लीजिए 1 से लेके 10 एक पॉइंट है, वो पूरा एक असेंबली लाइन है, और हर एक स्टेप में उस कार का अलग अलग पार्ट बन रहा होगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में उसका इंजन बन रहा है, सेकंड में उसका टायर बन रहा है, थर्ड में उसका रूफ बन रहा है, फोर्थ में उसकी बॉडी बन रही है, यानी कि हर एक स्टेप में कुछ अलग बन रहा होगा उस कार का। और 1 से लेके 10 स्टेप है, और 1 से जब शुरू होता है तो 10 तक आने तक एक कार पूरी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पूरी एक लाइन चल रही है। इसी को बोलते हैं असेंबली लाइन। और आज की तारीख में बहुत सी कंपनियां इस असेंबली लाइन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं। तो ये है असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट और पूरी मेथड स्टडी। नाउ फोर्थ टेक्निक इज मोशन स्टडी। नाउ व्हाट डज हियर वर्ड मोशन मीन? मोशन मतलब होता है कोई भी पर्सन जो हिल डुल रहा है, उसी को उसका मोशन बोलते हैं, कि मोशन कर रहा है वो। नाउ कंपनी में मोशन का मतलब क्या होता है? कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो कुछ ना कुछ मोशन करते ही रहते हैं। जैसे एम्प्लॉय को अगर टी या कॉफी पीना है तो उसे मोशन करना पड़ेगा। अगर कंपनी में एम्प्लॉय का कलीग का फोन आ गया, किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, तो उसे वो कॉल अटेंड करनी पड़ेगी, वो बात करेगा, तो वो भी एक मोशन है। या फिर कंपनी में अगर उन कंपनी एम्प्लॉय के बॉस ने अगर उसको बुलाया है तो वो अपने बॉस के कैबिन तक जाएगा, तो वो भी एक मोशन है। और भी कई तरीके के मोशन होते रहते हैं। तो टेलर बोलता है ये मोशंस को हमें दो कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए। तो जो मोशंस हमारे कंपनी में प्रोडक्ट बनाने के लिए काम पे नहीं आ रहे हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, उन्हें हम बोलेंगे अनप्रोडक्टिव मोशन। तो जैसे टी कॉफी पीना और दोस्तों से बातें करना, ये एक अनप्रोडक्टिव मोशन है। लेकिन बॉस ने किसी काम से बुलाया तो ये क्या है? ये एक प्रोडक्टिव मोशन है। अब टेलर यही कहता है कि हमें जो अनप्रोडक्टिव मोशन है इसको कट डाउन कर देना चाहिए।
अनप्रोडक्टिव मोशन को कट डाउन करो या इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। लेकिन प्रोडक्टिव मोशन तो जैसे चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्टिव मोशन अच्छी बात है, लेकिन अनप्रोडक्टिव को कट डाउन करे और मिनिमाइज करने की कोशिश करो ताकि एम्प्लॉय जो है प्रोडक्टिव काम में ज्यादा समय स्पेंड करे। So let's have a quick read of motion study. It refers to the study of movements like lifting, pulling objects, sitting and changing place, etc. while doing job, and then classify those movements in productive and unproductive movements, and then make a strategy to cut down or minimize the unproductive movements to complete the job efficiently. Taylor and his associate Frank Gilbert were able to reduce motions in bricklayering from 18 to just 5। यानी कि टेलर और फ्रैंक ने ब्रिक लेयरिंग मतलब होता है कि जो वॉल बनाते समय, कोई भी बिल्डिंग बनाते समय जो ईंटों की हम लेयरिंग करते हैं उसमें जो मोशंस थे पहले 18 थे, और इन दोनों ने उनको रिड्यूस करके सिर्फ कितने मोशन रखे, 5 मोशन। तो यहाँ पर ये टेलर की एक अचीवमेंट थी जो कि याद करना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको मेंशन करोगे अपने आंसर में तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। Now, fifth technique is time study. In any company, there should be a time limit to perform any job or a target. Because if there will be no time limit to complete that target, all the employees will be working because as such they have no time limit. So this could turn into a loss for a company. That's why it is very important for the company set a time limit for any work, for any job, because if the employee will be having a time limit, so they will perform that job within that time limit and achieve the target within the time. So that's why it is very important to fix the time for any job or a target. So we have to conduct a proper time study. तो यहाँ पे टेलर ने सजेस्ट किया कि टाइम स्टडी में कोई एक एवरेज वर्कर को नोटिस किया जाएगा, उसको एक काम दिया जाएगा और देखा जाएगा कि वो उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है। एंड यही एक्सपेरिमेंट हम कई बार रिपीट करेंगे और फिर जो एक एवरेज टाइम आएगा वही हमारा उस जॉब को, उस टारगेट को कंप्लीट करने का टाइम बन जाएगा। एक स्टैंडर्ड टाइम हम फिक्स कर देंगे। तो ऐसे यहाँ पर टाइम स्टडी की जाएगी। एंड टाइम स्टडी सिर्फ कितना टाइम लिमिट लगानी है कोई भी जॉब को करने के लिए वही नहीं बताता, वो ये भी बताता है कि कोई भी जॉब करने के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए। तो टाइम स्टडी हमें इसके अलावा भी और चीजें बताता है। लेट्स हैव अ क्विक रीड। It determines the standard time taken to perform a well-defined job. Taylor suggested that the time required to perform the job should not be decided by intuition, will and wish of manager. यानी कि rule of thumb नहीं लगना चाहिए। But time study must be conducted to determine the standard time scientifically. यानी कि time study conduct होना चाहिए। The standard time is fixed for the whole of the task by taking several readings. Readings यानी कि हम बार बार टाइम नोट करते रहेंगे, हाँ इतने टाइम में इसने कंप्लीट किया, और ये हम several times करेंगे। The method of time study depends upon volume and frequency of task. और हर टास्क का टाइम अलग अलग होगा क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि काम कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना बड़ा काम। The objective of time study is to determine the number of worker to be employed। यानी कि टाइम स्टडी का और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, एक तो कितने वर्कर एम्प्लॉयड करे, कि मान लीजिए कोई काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो ऐसे में आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को उस वर्क में लगाओगे। फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, और अगर आप क्या करोगे अपने एम्प्लॉयज से कहोगे कि आप इतना काम कर लोगे, उनको ज्यादा काम दोगे और कहोगे कि आप अगर अपना टारगेट अचीव कर लेते तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव यानी कि उनको कुछ ना कुछ बढ़ा के पैसे मिलेंगे या फिर कुछ गिफ्ट मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है एज अ इंसेंटिव। एंड डिटरमाइंड लेबर कॉस्ट, और कितना कॉस्ट आएगा वो भी हमें टाइम स्टडी से पता चलता है। So sixth technique is fatigue study. Employee working in a company always require a rest interval in between of their work
because employees are human being, not a robot. Because robot can work continuously in the company, but human cannot work continuously in the company. Employees need a rest interval to recharge themselves, because if employee will not get the rest interval, so he will feel low, he will feel exhausted, and he cannot do the work with its full efficiency, and which is not good for the company. So company has to give them a rest interval. Now, when and how much rest should be given to the employees, this should be decided in this fatigue study. तो यहाँ पर टेलर ने फटीग स्टडी में बताया कि एक एम्प्लॉय को एक वर्क देना चाहिए और देखना चाहिए कि कब वो एम्प्लॉय उस काम को करते करते थक जाता है। देन उस पॉइंट में हमें उसे एक रेस्ट इंटरवल देना चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी देर बाद वो फिर से रिचार्ज हो जाता है, दोबारा काम करने के लिए फुल एफिशिएंट हो जाता है। तो वही टाइम को नोट करना है और उसे कुछ बार और रिपीट करके देखना है, और फिर जो एक एवरेज टाइम होगा वही हमारा रेस्ट इंटरवल का टाइम होगा। एंड दिस इज हाउ लेट्स हैव अ क्विक रीड। A person is bound to feel tired physically and mentally if he does not rest while working. The rest intervals will help one to regain stamina and work again with the same capacity. This will result in increased productivity. तो रेस्ट मिलने के बाद दोबारा से हमारा स्टेमिना वापस आ जाता है और फिर हम काम उतने ही अच्छे से दोबारा कर सकते हैं। Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest interval in completion a task. Taylor suggested to observe an average worker when he is performing a job. तो एक एवरेज वर्कर को देखेंगे जब वो काम करता है। नोट डाउन द टाइम व्हेन द वर्कर स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड। तो जब वो टायर्ड होता है हम वो टाइम नोट कर लेंगे। देन गिव हिम ब्रेक, उसको ब्रेक दे देंगे। This time can be noted to decide frequency of rest interval, and during break after how much time the worker become fresh to rejoin the work. तो कितनी देर बाद वर्कर दोबारा से फ्रेश हो जाता है दोबारा काम को ज्वाइन करने के लिए। कैन बी द टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल, तो वही हमारा रेस्ट इंटरवल होगा। तो लास्ट टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वेज हम सभी को पता है, लेबर को जो पैसा मिलता है उसको वेज बोलते हैं। और यहाँ पर डिफरेंशियल पीस मतलब है कि जो वेज है वो हर लेबर को अलग अलग मिलेगी। तो ये कैसे, मतलब ये सिस्टम क्या कहता है? ये सिस्टम सिंपली ये कहता है जो लेबर ज्यादा काम कर रहा है उसे ज्यादा वेजेस मिलेगा और जो लेबर कम काम कर रहा है उसे कम वेज मिलेगा। बिकॉज इससे होता क्या है, आप खुद सोचिए, अगर एक लेबर बहुत ज्यादा काम कर रहा है उसको भी उतना ही वेजेस मिल रहा है जो एक लेबर बहुत कम काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो ज्यादा काम कर रहा है वो डीमोटिवेट होगा, वो सोचेगा यार मैं इतना काम करके भी उतना ही कमा रहा हूँ जितना मेरे से नीचे वाला जो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा उसको भी उतना ही वेज मिल रहा है। तो वो भी डीमोटिवेट हो जाएगा और वो फिर काम कम कर देगा, जिससे कंपनी का ही नुकसान है। तो कंपनी कहती है आप अगर ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा वेज मिलेगा, कम काम कर रहे हो कम वेज मिलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम यही है। तो लेट्स हैव अ रीड। दिस सिस्टम emphasizes on paying different rate of wage for efficient and inefficient employees. efficient employee मतलब जो ज्यादा काम कर रहा है, inefficient यानी कि जो कम काम कर रहा है। Extra wages paid to efficient employees will motivate them to remain efficient. तो अगर जो अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, उसको आप ज्यादा वेज दोगे तो वो मोटिवेट रहेगा कि मेरे को ज्यादा काम करना चाहिए। An inefficient employee to come in category of efficient employee. और जो कम काम कर रहा है लेबर, वो भी मोटिवेट होगा कि मेरे को ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करना। When payment is given according to number of unit produced, automatically the production will be maximized. तो वो कह रहा है कि ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा अगर आप कहोगे कि जिस ज्यादा प्रोडक्शन करने में आपको ज्यादा वेज रेट मिलेगा, तो हर लेबर ज्यादा प्रोडक्शन करने की। कंपनी मस्ट फिक्स अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज फॉर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड मतलब एक हमने बेस सेट कर दिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, आपने सेट कर दिया कि 10 यूनिट एक दिन में जो बनाएगा उसको रेट मिलेगा 50 रुपीज पर यूनिट का। तो यहाँ पर द वर्कर हु प्रोड्यूसेस मोर देन द स्टैंडर्ड टारगेट मस्ट बी पेड विद अ हायर रेट ऑफ वेज।
तो मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने बनाया है कि एक लेबर ने 12 यूनिट बना दिया एक दिन में, तो 10 यूनिट से ज्यादा हो गया, तो उसको वेज रेट कितना मिलेगा, 50 से ज्यादा मिलेगा, यानी कि उसको 60 मिल रहा है, तो उसने कितने रुपए कमाए, 720 रुपीज। दूसरा अगर मैं देखूं, एंड दोज हु प्रोड्यूसिंग लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट मस्ट बी पेड विद अ रेट लेस देन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड, उसने दूसरे एग्जाम तीसरा जो एग्जांपल है उसमें उसने प्रोड्यूस किया 8 यूनिट पर डे, यानी कि 10 यूनिट स्टैंडर्ड था, उसने उससे भी कम बनाया, तो इसको यहाँ पर पैसे भी कम मिलेंगे। स्टैंडर्ड में 50 मिलने थे लेकिन अब इसको 40 ही मिलेंगे, तो इसने टोटल कितना कमाया, 320। तो आप खुद देखिए, जिसने ज्यादा काम किया उसने 720 कमाए, जिसने कम काम किया उसने 320 कमाए। तो यहाँ पर यही है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और यहाँ आपके टेक्निक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।